الدین الخالص. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن. آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کے اندر بے پردگی بہت زیادہ عیاں ہو گئی ہے، تو عورت اور پردہ کے بارے میں عالم ثانی کی طالبہ عائشہ بنت عبد الوہاب آپ لوگوں کو بتائیں گی عورت اور پردہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی اے عورتوں تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور زمانے جاہلیت کی طرح اظہار زینت کرتی نہ کرو. معزز سامعات، میری دینی اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کی اس اجتماع میں میری تقریر کا عنوان ہے عورت اور پردہ. سامعات، عورت مخلوقات خداوندی کی اس مخلوق کا نام ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے رجحان و میلان کے انگنت اسباب فراہم کیے ہیں. عورت انعامات خداوندی کی اس عظیم نعمت کا نام ہے جس کے انداز و ادا میں کھینچ لینے کی عجیب قوت موجود ہے. غرض یہ کہ حسن و جمال کی کوئی ایسی خوبی باقی نہیں رہی جو عورت کے اندر موجود نہ ہو. لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب عورت رہتی ہے، جب عورت اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو سنوارتی ہے، جب اس کی زندگی میں قرآنی تعلیمات ہوتی ہے، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے والی ہوتی ہے، جب یہ عورت عائشہ کی مثال، حفصہ کا کردار، زینب کی نظیر ہوتی ہے، ام سلمہ کی سخاوت اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، فاطمہ کی حیا اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے اور غیر اسلامی تہذیب و تمدن کا خاتمہ کرنے والی ہوتی ہے. لیکن میرے بہنوں، میری ماں، کیا آپ جانتی ہیں کہ عورت کس طرح عائشہ کی مثال، حفصہ کا کردار اور زینب کی نظیر بن سکتی ہے؟ کس طرح؟ اسی پردے کی وجہ سے عورت عائشہ کی مثال، حفصہ کا کردار اور زینب کی نظیر بنتی ہے. آج عورت کو عورت کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ سر سے لے کر پیر تک چھپانے کی چیز ہے. لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج کیا کہتا ہے کہ آج پردہ صرف عورتیں کیوں کریں؟ حجاب اور پردے میں صرف عورتیں کیوں رہیں؟ لڑکیاں کیوں رہیں؟ مرد کیوں نہیں؟ مرد بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف عورتوں ہی سے کیوں کہا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ اے عورتوں تم نرم لہجے سے بات مت کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہو، جس کے دل میں مرض ہو، جس کے دل میں کوئی روگ ہو، وہ تمہارے بارے میں غلط انٹینشن پال لے، وہ تمہارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بھلائی کی باتیں کیا کرو. میری بہنوں، اسی لیے کیونکہ عورتوں کی آواز میں شیرینی اور مٹھاس ہوتی ہے، ان کے انداز اور لہجے میں نزاکت اور دلکشی موجود ہوتی ہے. پردے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے نقاب لگا لیا آپ کا پردہ ہو گیا، آپ نے فیس کور کر لیا آپ کا پردہ ہو گیا، بلکہ پردہ تو آنکھوں کا بھی ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینانی تزنیانی، کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. وہ زناہم النظر، اور ان کا زنا دیکھنا ہے. پردہ تو ہاتھوں کا بھی ہے. کیونکہ الیدانی تزنیانی، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. وہ زناہم البطش، اور ان کا زنا پکڑنا ہے، چھونا ہے. والرجلانی تزنیانی، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. وزناہم المشی،
और उनका जिना चलना है। जुबान का भी पर्दा है, आवाज का भी पर्दा है। क्यों? क्योंकि जुबान भी जिना करती है। वज़िनल लिसानी अल मंतिक, जुबान का जिना बात करना है। वन्नफ्सु ततमन्ना व तश्तही वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबुहु, दिल का गुनाह आरज़ू और ख्वाहिश करना है और शर्मागा इन सब की तस्दीक कर देती है या तकज़ीब। यानी अगर आदमी जिना करता है, बुरा काम कर बैठता है, तो शर्मगा इन सब की तस्दीक कर देती है। और अगर आदमी जिना से रुक जाता है, बाज आ जाता है, तो वो शर्मगा इन सब की तकज़ीब कर देती है। लेकिन आज अफसोस है कि आज हमने इस्लामी तालीमात को भुला दिया। आज हमने अपने दीन को भुला दिया। आज हमने अपने रब के फरमान, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को फरामोश कर दिया। उनको हम भूल बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें इस्लामी तालीमात जो ज्यादा पसंद, इस्लामी तालीमात से ज्यादा गैर इस्लामी तालीमात जो पसंद आने लगी है। आज हम इस्लामी लिबास और पर्दे के बजाय वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न ड्रेसेस को चुनते हैं। आज जो लड़कियां स्कूलों, कॉलेजों और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, वहां तालीम हासिल करती हैं, अगर उनसे कहा जाए कि आप पर्दा कीजिए, अगर उनको पर्दे का हुक्म दिया जाता है, तो जानती हैं वो क्या कहती है? वो कहती है आई एम ओपन माइंड, मैं ओपन माइंड हूँ, मैं खुले दिमाग की हूँ, मैं खुले मिजाज की हूँ, मुझे पर्दे की जरूरत नहीं है। और जब मैं सही हूँ तो भला मुझे जरूरत हो भी कैसे सकती है? लेकिन मेरी माएं, मेरी बहनें, ये बात मत भूलिए और याद रखिए कि सहाबा इकराम, उम्महातुल मोमिनात, सहाबिया से ज्यादा कोई पासा और पाकीज़ा नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें भी पर्दे का हुक्म दिया और कहा, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तग़ज़ाना बिल क़ौली फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। ऐ नबी की बीवियों, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहरात, ऐ उम्महातुल मोमिनात, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तुम तक़वा इख्तियार करती हो, अगर तुम परहेज़गारी इख्तियार करती हो, फला तग़ज़ाना बिल क़ौल, तो नर्म लहजे से बात मत करो, नर्म अंदाज में बात मत करो। फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन, कि वो शख्स जिसके दिल में कोई बीमारी हो, कोई मर्ज हो, वो तुम्हारे बारे में गलत उम्मीद लगा बैठे, वो तुम्हारे बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाए। वकुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, और भलाई की बातें किया करो। नीस फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन, कि ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी इज़हारे ज़ीनत करती ना फिरे। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि वो अपने ऊपर चादरें ओढ़ लिया करे, चादरें लटका लिया करे। तो मेरी माँ और बहनों, ये था उन लोगों का पर्दा जो इस उम्मत के सबसे ज्यादा पाकीज़ा और पारसा है, जो इस उम्मत के सबसे ज्यादा ओपन माइंड लोग हैं। आज के इस फितने के दौर में हम औरतों को, हम लड़कियों को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है तो वो पर्दा है। आज हमारा प्रोटेक्शन पर्दा है, आज हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत का जरिया पर्दा है। कोरोना बीमारी, कोविड-19, कोरोना बीमारी, कोरोना महामारी, जिससे हम आप बखूबी वाकिफ हैं और जिसकी वजह से हमने तकरीबन 5-6 महीने लॉकडाउन में भी गुजारे। उसमें हमारे बचाव के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए कई नियम लागू किए गए थे, जिनका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य था। हमें उन नियमों को मानना जरूरी था। क्यों? लेकिन उस नियम में औरतें और बच्चों, बूढ़ों और बच्चों के लिए अलग रूल था, और वो ये था कि वो घरों से ना निकले, उनके लिए घरों से निकलना सख्त मना था। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनके अंदर जवान के मुकाबले में, एक जवान मर्द आदमी के मुकाबले में ताकत और कुव्वत कम और कमजोरी ज्यादा होती है।
इसीलिए उनको घरों में रहने का हुक्म दिया गया। लेकिन मेरी माँ, तो जहां अल्लाह ताला ने एक तरफ, तो जब हमारे कानून ने ये हुक्म दिया कि बूढ़े और बच्चे घरों में रहे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने औरतों को भी हुक्म दिया कि वो अपने घरों में रहें और पर्दे के साथ रहें, क्योंकि उनके अंदर तहफ्फुज़े नफ्स की कुव्वत कम होती है मर्दों के मुकाबले में। हमारी शरीयत ने मर्दों और औरतों दोनों को हुक्म दिया है, लेकिन उनकी कुव्वत, उनकी कमजोरी के हिसाब से अलग अलग हुक्म दिया है। सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कुल्लिल मुमिनीना यगुस्सू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों को हुक्म दीजिए कि अन यगुस्सू मिन अबसारिहिम, कि वो अपनी निगाहों को पस्त रखें, अपनी निगाहों को नीची रखें, व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह ताला उन चीजों से बखूबी वाकिफ है जो कुछ वो कर रहे हैं। और औरतों को क्या हुक्म दिया गया? औरतों से कहा गया, कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्ना, कि ऐ मोमिना औरतों, तुम अपनी निगाहें नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को जाहिर ना करो, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो कुछ जाहिर हो जाए, जैसे हाथ पांव वगैरह। वलयदिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, और अपने गिराबानों पर दुपट्टा डाले रखो। तो ये था हुक्म हमारी शरीयत का हम औरतों और लड़कियों के लिए। आज हमारे सीएम, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे लिए मिशन शक्ति का अभियान जारी किया है। मिशन शक्ति का अभियान जारी किया है किस लिए? हमारी इज्जत के तहफ्फुज के लिए, हम लड़कियों और औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए। लेकिन मेरी माँ और बहनों, जरा मुझे ये बताइए कि क्या हमारी इज्जत और आबरू सिर्फ इन्हीं नियमों के पालन करने से महफूज हो जाएगी? क्या हमारे लिए हमारे रब के फरमान वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, यानी अपने घरों को में ठहरी रहो और ज़माने जाहिलियत की तरह इजहार ज़ीनत करती ना फिरो, इसकी कोई अहमियत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अलमरअतु इज़ा स्तातरत फमरत बिल मजलिसी फहिय कज़ा, यानी अज़्ज़ानिया, कि जो औरत किसी कौम के पास से खुशबू लगाकर गुजरती है, किसी मजलिस के पास से मुअत्तर होकर इत्र लगाकर गुजरती है, फहिय कज़ा, तो वो ऐसी ही है, यानी अज़्ज़ानिया, जिना करने वाले की तरह वो औरत है जो औरत खुशबू लगाकर किसी मजलिस के पास से गुजरती है। मेरी माँ और बहनों, आज इस्लाम हमें पर्दे का हुक्म देता है। आज इस्लाम हमसे कहता है, लिकुल्लि शैइन खुलुकुन व खुलुकुल इस्लामी अल हया, कि हर चीज का अखलाक है और इस्लाम का अखलाक हया है। तो मेरी माँ और बहनें, आप हया क्यों नहीं करती? मेरी माँ और बहनें, आज अगर आप तौहीद पर रहेंगी, आज अगर आप दीन पर रहेंगी, आज अगर आप पर्दे में रहेंगी, तो न सिर्फ आपकी तकदीर का सितारा चमकेगा, बल्कि आपकी जो औलाद होगी, आपकी जो नस्ल होगी, उन पर आसमान और जमीन को भी फक्र होगा। वो तलवारों की बौछारों, तीरों की छांव में भी नमाज को कज़ा नहीं करेंगी। वो ना सिर्फ यही, वो आलिम, मुहद्दिस और हाफिज भी बनेंगी। लेकिन अगर आप बेपर्दगी इख्तियार करेंगी, बेहयाई करेंगी, फाहशी करेंगी, तो आपकी गोद में तो ना सिर्फ आप, बल्कि आपकी गोद में खिलता हुआ हर फूल मुरझा जाएगा। वो डकैती और चोरी करेगा, क्रिमिनल और अपराधी बन जाएगा और नमाज से जी चुराएगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माओ, होश में आइए, संभल जाइए, अब भी वक्त है। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। और बेहयाई और फाहशी से बचिए और रब्बुल इज्जत से दुआ करिए कि वो हमें सही मानों में पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें गलत कामों, गलत राहों से बचाए। ऐ हमारे रब, हम बहुत खताकार हैं, हम बहुत गुनाहगार हैं, हमें तू बख्श दे। ऐ हमारे रब, हमारी गलतियों, हमारी लग़ज़िशों से दरगुजर फरमा। तू करीम है, तू रहीम है,
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں جب تک تو اس دنیا میں رکھ، اسلام پر، ایمان پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، ایمان بالخیر پر۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔